So welcome dear students. Today we will start with the numericals which are based on the enthalpy of formation. ठीक है, enthalpy of formation it is denoted by delta HF. हमने एक वीडियो में पहले भी देखा था what is enthalpy of formation and we have done this in detail what is enthalpy of formation. So if we want to state brief what is the enthalpy of formation, so it is the formation of any compound from its element in the standard state. For example, if I want to prepare carbon dioxide, so enthalpy of formation of carbon dioxide is amount of heat change during the formation of carbon dioxide from its elemental state. मतलब कार्बन और ऑक्सीजन को you have to take in the elemental state. So elemental state में कार्बन it is present as C and O oxygen is present as O in the form of gas and carbon is in the form of solid. So this any heat change in this reaction that is CO2 की फॉर्मेशन में जो भी हीट चेंज हुई है दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. क्योंकि यहाँ पे क्या है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन, सो दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है. सिमिलरली फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू प्रिपेयर SO2 sulfur dioxide, so how SO2 can be prepared? It can be prepared by the reaction of sulfur in the solid state plus ऑक्सीजन इन द गैसियस स्टेट टू फॉर्म SO2. तो ये भी क्या होगी? इट इज़ एंथैल्पी. जो भी इस रिएक्शन में हीट चेंज हो रही है दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2. ठीक है. तो दिस इज ब्रीफ अबाउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस टॉपिक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है. तो एक और चीज़ यू हैव टू कंसिडर दैट एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन is equal to enthalpy of the product minus enthalpy of the reactant. So everywhere we have to use this formula that enthalpy change for a given reaction it is given by enthalpy of the product minus enthalpy of reaction. अब ये जो हम enthalpy यूज़ कर रहे हैं हम क्या यूज़ कर सकते हैं? enthalpy of formation of product and enthalpy of formation of the reactant, and based on this formula we will solve this question. So we have a question, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन. हमें क्या निकालनी है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज. और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा H0. ठीक है. तो इसको निकालना है फॉर द रिएक्शन. एंड रिएक्शन क्या दी है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इन द गैसियस स्टेट, बोथ आर इन द गैसियस स्टेट, दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट. तो देर इज वन कार्बन, ऑक्सीजन्स आर 2. So oxygen are 2, hydrogen is 2 and hydrogen 2. So this is a balanced chemical equation. So we have to calculate the enthalpy change for this reaction. So this is a very simple question. We have enthalpy change for this reaction is equal to, that is enthalpy of product minus enthalpy of the reactant. So you will use this equation only, enthalpy of formation of product minus enthalpy of the reactant. So what is the enthalpy change of product? This is delta H for the reaction is summation of enthalpy of product. Product are CO plus enthalpy change of that of water minus reactant are enthalpy of CO2 plus enthalpy of H2O. You have to use this equation. So enthalpy of CO and water, and you are given the terms that enthalpy of formation of CO is given, CO2 is given and H2O is given. So CO2 की कितनी दी गई है? It is minus 393.5 plus water की कितनी दी गई है? minus 241.8. You have to add both of these terms. This is corresponding to this and this is corresponding to this. ठीक है. minus enthalpy of carbon dioxide formation. This is enthalpy of formation of carbon dioxide. So enthalpy of formation of carbon dioxide is given such as, sorry मैंने ये गलत यूज कर दिया. enthalpy of CO is given, it is minus 113.3. ठीक है. and water it is given 241.8. carbon dioxide it is minus 393.5. एंड हाइड्रोजन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन. अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन इट इज़ प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट. तो कोई भी सब्सटेंस अगर स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है तो उसकी एंथैल्पी क्या मानते हैं? इट इज़ कंसिडर्ड एज 0. तो दिस इज प्लस 0. ठीक है. तो क्या बन गया हमारे पास? इट इज़ minus 113.3
माइनस 241.8 माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस 393.5. ओके, एंड व्हेन यू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस ये कितना जाता है, इट कम्स आउट टू बी 355.1 प्लस 393.5. सो आंसर इज 38.4 किलो जूल. ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस रिएक्शन. एंड ये क्या निकला हमारा, ये निकला हमारा डेल्टा एच नॉट. तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज 38.4 किलो जूल पर मोल. ठीक है, तो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड क्वेश्चन. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4. मतलब हमें अब C2H4 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है. ठीक है, एंड यू आर गिवन द इक्वेशन, दिस इक्वेशन, एंड इस पूरी इक्वेशन के लिए हमें डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन दी गई है. मतलब ये क्या चीज़ है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कितना दिया गया है, -1323 किलो जूल. और साथ में हमें कुछ डाटा दिया गया है, दैट डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 दी गई है, एंड डेल्टा एच ऑफ वाटर फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज ऑल्सो डेल्टा एच फॉर्मेशन. डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया गया है -249.4 किलो जूल पर मोल. ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H4. ठीक है, तो इस रिएक्शन को देखते हैं. इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू दी गई है. तो वी नो दैट डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू summation H of product minus summation H of reactant. मतलब हीट चेंज इन द प्रोडक्ट माइनस हीट चेंज ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, तो प्रोडक्ट देखते हैं हम क्या है यहाँ पे, ये है प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट क्या है, इट इज़ द डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दी गई है कितनी, -1323 किलो जूल. ये दिया गया है हमें डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट की एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, इट इज़ 2 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर. ये हो गए प्रोडक्ट्स. ठीक है, हमने कहा था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो दीज आर टू प्रोडक्ट माइनस हमें किसकी कर देनी है, रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट क्या है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H4 प्लस 3 इंटू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. ठीक है, तो दीज आर रिएक्टेंट, C2H4 इज रिएक्टेंट एंड O2 इज ऑल्सो रिएक्टेंट. तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लिया. ठीक है, तो दिस इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. ठीक है, नाउ वी विल पुट द वैल्यूज. सो व्हाट आर द वैल्यूज गिवन, -1323 इज इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी आर गिवन, कितना दी है, -393.5. तो इट इज 2 इंटू -393.5 किलो जूल प्लस 2 इंटू हाइड वाटर की भी दिया है डेल्टा एच फॉर्मेशन, कितना दिया है, 249 किलो जूल पर मोल. ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट का, माइनस C2H4 की हमने कैलकुलेट करनी है. तो वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H4 प्लस 3 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन ऑक्सीजन क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एज इट इज एग्जिस्ट करता है, तो जहाँ पे भी स्टैंडर्ड स्टेट है वी हैव टू टेक डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू 0. सो दिस इज 3 इंटू 0. ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट दिस वैल्यूज. दिस इज -1323 is equal to, you can calculate these values, this come out to be, so when we calculate these values it come out to be like this, minus delta H formation of C2H4. So taking this toward this side we get -1312 plus this is positive 1285 is equal to minus delta H of this. ठीक है, now if we solve out these two it come out to be 38 kilojoules is equal to minus डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H4. तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए यहाँ पे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H4 कम आउट टू बी +38 किलो जूल पर मोल. ठीक है, इट इज़ पर मोल.
तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। तो हमें डेल्टा एच रिएक्शन दिया है, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स की वैल्यू पुट करो, रिएक्टेंट्स की वैल्यू पुट करो, ठीक है। जो भी चीज़ निकालने के लिए बोलिए लेट इट बी एज इट इज, दैट वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H4. So putting all the values we can easily calculate the delta H formation of any reactant. Now again we have last question. We will solve 3 questions here. Calculate enthalpy change for the reaction. We are given this reaction. 4 molecules of ammonia plus 3 molecules of oxygen react to form 2 molecules of nitrogen and 6 molecules of oxygen. So we have to calculate delta H of reaction. It is H of product minus H of reactant, ठीक है। तो again we will write the same equation. प्रोडक्ट क्या चीज़ है हमारे पास, नाइट्रोजन एंड वाटर. सो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज 2 इंटू डेल्टा एच ऑफ नाइट्रोजन प्लस 6 इंटू डेल्टा एच ऑफ वाटर. ये हो गया एक ब्रैकेट में पूरा, माइनस माइनस रिएक्टेंट. रिएक्टेंट क्या है, 4 इंटू डेल्टा एच ऑफ NH3 प्लस 3 इंटू डेल्टा एच ऑफ ऑक्सीजन. ओके, ठीक है. तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हमें क्या करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. तो देखो, वी हैव टू पुट द वैल्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा एच ऑफ नाइट्रोजन, डेल्टा ऑफ नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट, तो हम क्या ले लेंगे इस वैल्यू को 0, प्लस 6 इंटू डेल्टा एच ऑफ वाटर. वाटर की वैल्यू दी है हमें, कितनी दी है, 286.0, माइनस 4 इंटू डेल्टा एच ऑफ अमोनिया. अमोनिया की कितनी दी है, दिस इज 4 इंटू अमोनिया की, इट इज़ गिवन माइनस 46.0, प्लस 3 इंटू डेल्टा एच ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन ऑक्सीजन इट इज़ अगेन प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट, तो अगेन आई हैव टू take this value is equal to 0. Now we can easily solve this equation. So delta H of reaction is equal to, it is equal to 6 into minus 286 minus 4, this will come out to be plus 4 into 46. So if we solve this equation, we get value is equal to minus 1532 kilojoule per mole. So delta H of reaction is this, ठीक है. तो we can easily solve, how we can solve delta H of reactions. So depending upon these, there are other also numerical. If I get time, I will upload this numerical also. So this is very important part in case of standard enthalpy of formation. Examination में, examination point of view से बहुत important है. जब भी BSc, this is for BSc second year, this is for BSc second year according to हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी. सो BSc second year में आई हैव एक्सपीरियंस दैट जितने भी फाइनल एग्जाम आते हैं वहाँ पे यू ऑलवेज गेट न्यूमेरिकल ऑन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. थैंक यू, गुड लक.